Hi everyone, so welcome back to my channel. If you're seeing this face for the first time, my name is Divya and I'm shooting this video approximately after 1 year of being disappear on this platform. I make videos related to fashion, lifestyle and beauty, but and I have also done food vlogs also, but I was on a regenerating mode from a very long period of time. So today I am a totally different person that I was 6 months ago. So if you know me from 2024, today is 1st of July. I am not that person that you met last year or you met in January. So there are few things that have changed my life, and the things that I have practiced on and on to be a better version of myself. And here I am sharing with you 5 ways to stay productive. And I'm lazy person. I can't tell you that सबसे ज़्यादा आलसी मैं हूँ अपने ख़ानदान में. And it was a very big task for me to be productive and do my task. I'm a big procrastinator. बहुत ज़्यादा डिले करने की आदत है मुझे कामों को, but I built into little habits, small tasks, and find out the ways through which I can get productive, because I was struggling a lot to finish my work, to be on time, to manage my work, and to manage the households, business, and everything at a one time. So I was so much into panic and anxiety that I need to figure this out. I have to do it, but कुछ तरीका नहीं था मेरे पास. So I do few searches here and there. I start applying them into my daily life, and after 6 months I am here to share these tips and tricks very confidently with you, because it really works. I can bet you on that. So if you are interested in to watching how to be productive in very quick and easy effective ways, then please continue watching. First and foremost thing that you need to follow is plan your freaking day. आपको पता होना चाहिए what you are going to do in the next day. आपको क्या करना है. It should be planned one night before, so that there is no chaos into your mind, no stress, no anxiety in the morning, because how you start your morning, how you start your day plans the whole day, and it breaks or makes your energy level. So it is very important to plan your day the night before कि आपको कल सुबह उठ के क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, लंच में क्या होना चाहिए, आपको क्या पहनना है. इट मैटर्स द मोस्ट. एंड बिकॉज वी यूजुअली एंड अप ऑन डिलेइंग अवर आउटफिट्स, अवर ब्रेकफास्ट, एंड वी एंड अप ऑन स्किपिंग अवर मील्स अगर हमारे पास प्रिपरेशन ही नहीं है तो, राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू प्लान योर डे अ नाइट बिफोर. ये बिल्कुल ही 5 मिनट का काम है. एक डायरी एंड पेन लीजिए, लिखिए आपको सुबह सुबह क्या करना है, कितने बजे उठना है, क्या खाना है, और ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, लेमन वाटर पीना है, और थोड़ा सा वॉकिंग करना है नेचर में, आपको ब्रेकफास्ट में ये खाना है. आपके काम शुरू होने से पहले आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं अपने मॉर्निंग के, वो आपके दिन को बनाते और बिगाड़ते हैं. सो मेक श्योर टू प्लान योर डे द नाइट बिफोर. दिस इज़ अ वेरी सिंपल trick, but it just take 5 minutes and it can do magic to your routine, trust me or not. Next up we are having follow one thing rule. वन थिंग रूल का मतलब ये है, यू हैव टू डू द डिफरेंट टास्क. मल्टीटास्किंग आपको करनी है, बट इट शुड नॉट इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर टास्क दैट यू आर डूइंग, राइट. मीन्स आपको एक काम को अच्छे से ही करना है. वन थिंग एट वन टाइम मीन्स एक काम को करिए, पूरी शिद्दत से करिए. ऐसा नहीं है कि एक तरफ आप एक काम करें, दूसरी तरफ आप दूसरा काम करें, आप नहा भी रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं, आप वो भी कर रहे हैं. डू वन थिंग एट अ टाइम, ताकि आपके काम करने की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड ना हो, और अपने आप को उतना ही टास्क दे के रखिए जितना आप एक्चुअली में अचीव कर सकते हैं. कुछ भी हाई लेवल प्रोडक्टिविटी लिस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ये भी कर दूँगी, मैं वो भी कर दूँगा, एंड ऑल. सो वन थिंग एट वन टाइम, एक टास्क पूरा करिए, उसके बाद ही गिव यू अ डेडलाइन, गिव योर सेल्फ अ डेडलाइन दैट ये ख़त्म होगा तभी मैं दूसरे टास्क पर जाऊँगा. सो दिस नीड्स टू बी डन कि आप एक टाइम पर एक ही काम कर रहे हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज
do multiple tasks, we should not degrade the quality of the task we are doing. Like अगर आपने ब्रेकफास्ट करना है साथ साथ आपने अपना लंच भी पैक करना है, तो ऐसा नहीं है फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेंगे. It will obviously affect you. Have a quiet breakfast and have enough time to prep your lunch and everything. So this is a basic example that I'm giving. Or so make sure to do one thing at one time. वेरी बेसिक टिप, बहुत ही छोटी सी बात है. यू नीड टू मैनेज योर टाइम. बचपन में बहुत पढ़ा था टाइम इज़ मनी, लेकिन समझ कभी भी नहीं आया. और अब जाके समझ आया दैट टाइम इज़ एक्चुअली मनी. इट इज़ रनिंग. आप नहीं भाग रहे हो लेकिन टाइम भाग रहा है. सो अगर आप अपने टाइम को स्केड्यूल नहीं कर सकते, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, तो आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते एंड यू कांट बी प्रोडक्टिव डार्लिंग. सो आपको अगर बहुत ज़्यादा तीर मार रहे हैं अपनी लाइफ में, सो you need to manage your time, prioritize your task and do accordingly. आपको सबसे पहले क्या करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, आपको वर्कआउट भी करना है, आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट भी खाना है, आपको काम पर भी टाइम पर पहुंचना है, आपको अपना साइड बिजनेस भी संभालना है. तो अगर आप ये सब करना चाहते हैं, यू वांट टू डू समथिंग, एक्चुअली डू समथिंग, तो अगर वन नाइट बिफोर जो लिखने का टास्क मैंने बताया था, उससे पहले भी अगर आपको कुछ करना है ना, आई शुड मेंशन दिस अर्लियर कि यू नीड टू मैनेज योर टाइम. आपको आना चाहिए कि आप अपने पूरे दिन के 24 घंटों को कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. अगर आप वो नहीं कर सकते तो यू आर लिटरली मिसिंग आउट ऑन डूइंग समथिंग इन योर लाइफ. The next step is, I am sure many of you have heard of this earlier, that is eat that frog. उसका मतलब होता है कि अपने दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर डालो भाई, कर डालो, ताकि आपको आगे के काम करने का मोटिवेशन आ सके. अगर आपको देखो, फॉर मी एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड. अगर मैं जल्दी उठ रही तो इट मतलब वो कहते हैं ना, सोना इज़ मेरी इज़ माई हॉबी. इतना पसंद था मुझे सोना, अब नहीं है. अब एक्चुअली में मुझे सोना पसंद नहीं है. माई पेरेंट्स नो हाउ मच आई लव स्लीपिंग. मुझे कभी भी कहीं भी आप सुला सकते हो. आई वॉज नेवर अ मॉर्निंग पर्सन. Honestly, I'm saying this after a very long period of time. Even after my marriage, I used to get up a bit late, means after 8 ही मैं उठती थी, एंड आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. दिस वॉज द हार्डेस्ट टास्क फॉर मी. अगर मुझसे कोई कहेगा ना कि आप ज़िंदगी में क्या है जो कभी नहीं कर सकते, तो आई यूज़ टू से मैं जल्दी नहीं उठ सकती हूँ. मुझे रात को आप 3 बजे तक काम करवा लो, 4 बजे तक काम करवा लो, पर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती. बट आई मेक दिस अ हैबिट, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपनी सबसे मुश्किल हैबिट को ही क्रैक करना था. आई स्टार्टेड गेटिंग अप अर्ली. आई जस्ट फिनिश माई समर वेकेशंस फ्रॉम स्कूल एंड आई थिंक 28 दिन की मेरी छुट्टियां थी. 28 में से मैक्सिमम 18 दिन तो मैं 20 डेज़ आई वुड से, मैं नहीं 18 ही कहूँगी मैं, 18 डेज़ मैं जल्दी ही उठी हूँ. एक्चुअली इट वॉज माई एग्जाम्स ऑल्सो, बट स्टिल छुट्टियों में जल्दी उठना इज़ अ बिग टास्क एंड आई हैव क्रैक्ड दैट. मुझे पता था मेरे पास पूरा दिन है पढ़ने के लिए, बट आई स्टिल यूज टू वेक अप अर्ली सो दैट आई कैन वेक अप अर्ली. पढ़ना वॉज नॉट माई इंटेंशन. Getting up early was my intention so that I can plan my whole day. I have a lot of time during holiday and I can have much of the time to do other tasks as well. Because अगर आपके पास पूरे दिन में आप लेट उठ रहे हैं, if you are starting your morning late, तो आपका ऑलरेडी स्केड्यूल जो है वो आगे आगे शिफ्ट होता है, डिले हो जाता है ना. तो इट्स बेटर टू, आपके लिए जो भी सबसे मुश्किल काम है आप वो सबसे पहले कर सकते हैं. वेदर इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन तो आप जल्दी उठ सकते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग. लेकिन अगर आपको लग रहा है आप उठ के एक्सरसाइज नहीं कर सकते, नो ये तो मुझे करना ही नहीं है, देन the first and foremost thing to do in the morning is go for a walk, move your body. कुछ भी करिए लेकिन अपने आप को एक्सरसाइज में लेकर आइए, ताकि आपका जो सबसे मुश्किल काम आपको लग रहा है ना, ये तो मैं आराम से कर दूँगा, नहीं कर पाऊँगा और बाकी तो मैं हो ही जाएंगे, तो सबसे मुश्किल वाले को सबसे पहले करिए. ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट, देन यू कैन क्रैक अप द डील फॉर द होल डे, आई प्रॉमिस यू. सो फॉर मी इट वॉज वेकिंग अप अर्ली. और मैंने
जल्दी उठने की आदत डाल ली। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बहुत सारे लोगों को ये बात मेरे बारे में नहीं पता, बिकॉज आई एम सेइंग दिस इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई एम नॉट showing it up on the social media as well, कि मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ अभी। आई एम स्टार्टिंग माई न्यू जर्नी एंड आई एम गेटिंग बैक टू इट वंस अगैन। सो जल्दी उठना शुरू करो। So the last point for this video is make a habit tracker. आदत को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं, आप अपनी हैबिट जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं आप उसको ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं, देन यू आर नॉट मेकिंग अ डिफरेंस इन योर डेली लाइफ स्टाइल, यू आर नॉट ट्राइंग टू बी प्रोडक्टिव। मुझे पता है कि मैं 28 डेज़ की छुट्टियों में से 18 डेज़ जल्दी उठी हूँ, बिकॉज आई वॉज ट्रैकिंग कि मैं कितने दिन जल्दी उठी हूँ और कितने दिन मैं लेट उठी हूँ। आई वॉज नॉट गिल्टी ऑफ गेटिंग अप लेट 10 days because it was my vacations and I was having the whole freaking day to do whatever I want to do, right? But still I make use of most of my days, finish up my household chores and market work and everything जो भी मुझे करना होता है। तो make a habit tracker. What you need to do is, I will explain you orally first. Take out 3 foremost habit that you want to develop in your daily routine. For example, waking up early. Second is going for a walk for 20 minutes. And third is journaling your day, right? कि आपको journal करना है अपना दिन। तो आप इन तीनों habits को एक पेज पर लिख लीजिए। लिख लिया आपने 1 2 3 अपने कॉलम्स बना लेने हैं एंड हेयर यू हैव टू राइट डाउन द डेज एंड द डेट्स। तो आपको जिस दिन आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया है, यू हैव टू टिक डाउन दैट कि येस आई हैव डन दिस ऑन दिस डेट एंड दिस डे। तो आप जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन आप कुछ भी मत करिए, लीव इट ब्लैंक एज इट इज़। सो बाय दिस यू कैन मेक अ हैबिट ट्रैकर, ताकि आपको पूरे मंथ का आपका रिकॉर्ड मिले दैट आपने अपने आप को कितना प्रोडक्टिव रखा, आपने अपने आप की कितनी सुनी। ये हैबिट ट्रैकर जो है, इससे आप एक कंसिस्टेंसी भी बिल्ड कर पाते हैं और कंसिस्टेंसी लीड्स टू अ हैबिट। तो इट इज़ अ बेस्ट वे। बट ये जो भी मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं, ये वही पर्सन फॉलो कर सकता है, a person who actually wants to make change in their life, a person who actually wants to be productive, a person who actually wants to do something and make the most of their day. And ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो देख लिया आपने 5 मिनट का and you are getting so much motivated. It will not bring fruits until or unless you applied it into your real life. I am not saying this by watching some random video. I am sharing these points with my पर्सनल एक्सपीरियंसेस। हवा में नहीं बात कर रही हूँ मैं, और मैंने एक्चुअली में जब ये चीज़ें अप्लाई की हैं अपनी लाइफ में, आफ्टर दैट आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स, राइट? आई एम नॉट जस्ट ब्लैबरिंग और गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन और ज्ञान इन फ्रंट ऑफ यू गाइस कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। मैंने भी कोई तीर नहीं मार ली है। आई एम जस्ट फॉलोइंग दीज हैबिट्स फ्रॉम पास्ट 6 months ओनली, और आई हैव सीन ड्रास्टिक चेंजेस इन टू माई रूटीन, इन टू माई मेंटल हेल्थ, इन टू माई प्रोडक्टिविटी। So only that's why I'm sharing it with you guys, and I hope you really can relate to these information and you will try to be as productive as possible in your life. Don't waste your time, and I must say that time is money. वो भाग रहा है और बहुत लोग उस रेस में निकल रहे हैं, लेकिन आपको पीछे नहीं रहना है। So मैं ऐसे ही बार बार आती रहूँगी आपकी स्क्रीन पर थ्रू द नोटिफिकेशंस, एंड विल गिव यू सम मोर टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट हाउ टू बी प्रोडक्टिव एंड हाउ टू बी मेक द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ, एंड मोर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वीडियोज़। वी विल डू द लाइफ व्लॉग्स एज वेल। सो बहुत कुछ अभी आना बाकी है, एंड आई एम बैक इन टू द मोशन विद लॉट and lots of power, determination and self confidence. So I hope आपके अंदर भी वो आएगा, and ये तभी आ पाएगा जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। You start analyzing yourself and your habits. So if you like this video, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and please hit that bell button.